Alright, Ji, next question says, need your advice on handling wedding traditions. Salam Junaid bhai, hope you're doing well. My name is ABC. I'm 26 from Karachi but currently studying in the UK. I've been following your content for a while now and I really respect how you break down complicated situations, so I figured I'd reach out for some advice on a tough one I'm dealing with. I've been in a relationship with a Chinese girl for a while now, and we're planning to get married, inshallah. I love her a lot, and the cultural differences haven't really been an issue. I'm pretty laid back about things like food and religion, and we've managed to make it work so far. Here's the deal though, we're planning to have two weddings, one in Pakistan and one in China. Her parents are actually super cool with the Pakistani wedding. They've even said they're looking forward to it because they've seen a fair bit of Bollywood and they're excited to experience that side of things. I made them aware about our culture and how certain food items and alcohol are prohibited in our culture, and they respect that as well. The Pakistani wedding isn't the issue at all. The problem is the Chinese wedding that will take place in China. Her parents want a full traditional Chinese wedding, and that's where my family is throwing a fit. Her parents, even though they're divorced, have always made her a priority and are fully involved in the planning. They want to do rituals like Jiaobi, where the couple drinks from connected cups to symbolize unity. They want to serve pork at the wedding since it's a huge part of their culture, like a symbol of abundance and fertility. In China, roasting a whole pig is a major tradition at weddings. If you personally ask me, I don't have a problem with it. However, my family is keeping a very strong stance against their culture. When my fiance spoke to her mother about this, she said they can do the wedding however they like, but for us, keeping our tradition and culture alive is also very important, and we will do our side of the wedding how we like it. They have started digging their heels in on this issue. It's almost become an ego thing for them now, especially after realizing how strong my family's stance is on keeping our traditions intact. Now, informing my Abu about attending a wedding with pork and alcohol toast, straight out of the question. It's hard. It's a hard no, and I'm stuck between not wanting to disrespect her parents, who are good people, and also not wanting to upset my own family. So I'm really in a tough spot here. How do I handle this situation, making either side feel like they're being disrespected without making them feel disrespected? I want to keep the peace, but it's getting harder every time this comes up. I'd really appreciate any advice you can share. Thanks so much for taking time to read this. So भाई एक भाई हैं, इनके शादी की रसूमात से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इनको अपनी रस्मों से मसला नहीं, इनकी चाइनीज़ फियांसे हैं और एक शादी पाकिस्तान में होगी, एक शादी चाइना में होगी. अब चूँकि पाकिस्तान वाली शादी है उसमें चाइनीज़ फैमिली आएगी, वहाँ पे अल्कोहल नहीं सर्व होगी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन द कल्चर, तो दे आर ओके विद दिस. मगर वो कह रहे हैं कि भाई सिंस वी आर ओके विद योर कल्चरल ट्रेडिशन, हमारे यहाँ जो है मियाँ बीवी जो हैं ऐसे हाथ करके यू टोस्ट करते हैं ताकि इट सिम्बलाइजेज यूनिटी, और साथ ही साथ एक सुअर जो है वो रोस्ट हो रहा होता है साइड में, तो वो तो हम खाते हैं क्योंकि वो फर्टिलिटी का साइन है. अब यहाँ पे जो लड़का है उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल ही सीधा सीधा बोल दिया, भाई एक तो अल्कोहल और पोर्क ये तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है वगैरह वगैरह. एंड नाउ ही इज़ इन अ पिकल, क्योंकि अब वो उसके भी पेरेंट्स जो हैं वो भी ज़रा एडमेंट हैं कि भाई हमारी रिचुअल्स भी चलेंगी और अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करें. सो अब इसमें ये भाई फंस गए हैं कि क्या करें, इधर करूं तो वो नाराज़, इधर करूं तो वो नाराज़. देखिए एक तरीका तो ये है, जिस तरह वो आपके रिचुअल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होगी और दूसरी चीज़ें, तो देर ओके, तो फिर आप भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं. आप तो खैर दिखा ही रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी, ठीक है. आई हैव अटेंडेड अ वेडिंग, एक बहुत अच्छे दोस्त की शादी यहाँ हुई थी और वो एक मल्टी कल्चरल वेडिंग थी. तो उसमें जो है उन्होंने ये किया था कि बिकॉज़ वो इन लॉज ज़ाहिर है आए थे दूसरे मुल्क से और फिर उनके दोस्त भी बहुत सारे दूसरे मुल्क से आए थे. वो जहाँ पढ़े थे वहीं पे उन्होंने शादी की, तो ज़ाहिर है वहाँ के दोस्त और लड़की के रिश्तेदार आए. तो उन्होंने क्या किया कि एक रात पहले, शादी से एक रात पहले, उन्होंने यहाँ पे एक हिप किस्म के रेस्टोरेंट में एक डिनर थ्रो किया. मतलब वो माइयों मेहंदी कुछ था नहीं, बस वो एक सॉर्ट ऑफ डिनर था. वहाँ पे शैम्पेन भी थी, वहाँ पे बियर भी थी, वहाँ पे विस्की वगैरह सब कुछ था और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया.
उनकी फैमिली ने, बिकॉज अगले दिन जो शादी थी वो सेग्रीगेटेड शादी थी। मतलब मैं जब फिर उस शादी में गया तो मैंने बोला, मैंने वहाँ देखा, वहाँ तो फुल टाइम भाई मेला लगा हुआ अपने वाला, और तो बिल्कुल सेग्रीगेशन थी। लाइक लड़की का बाप इस साइड था और लड़की की माँ उस साइड थी, और दे वर ओके बिकॉज दे अंडरस्टूड द फैक्ट कि भाई यहाँ का कल्चर है तो वी हैव टू अडेयर बाय दैट। सो उन्होंने ये किया था कि रसूमात उनके मतलब कि एक रात पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट में निकाल ली। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वो ज़रा एंजॉय करें इस चीज़ को, तो आप एक सेपरेट इवेंट यहाँ पे रख लें क्लोज फ्रेंड्स के लिए और उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पे वो अपना कर लें एंजॉय। अच्छा, तो बिकॉज़ वो आपके एंड बिकॉज़ उन्होंने ये किया, उन्होंने सेग्रीगेशन बर्दाश्त की कि हाँ चलो ठीक है यार, कुछ घंटों की बात है और अब इनका कल्चर है तो ठीक है। मगर जो दूसरा इवेंट उस मुल्क में हुआ जहाँ से वो आए थे, तो वहाँ खुला डुला माहौल था, तो उन्होंने बोला भाई हमने ये रिस्पेक्ट किया, अब आप वो रिस्पेक्ट करें, तो वो हो गया। अब यहाँ पे अब जाहिर है एक तो तरीक़ाकार ये है कि भाई आपके जो पेरेंट्स जाएंगे कंज्यूम ना करें, ठीक है, वो एक चल रही है अब उनकी रस्म है, कोई मसला नहीं है, वो उनका है। मगर अगर वो उस तरह के हैं जी, उनकी प्रेजेंस में ये चीज़ ना हो, यानी कि वो उस जगह पे भी मौजूद होना पसंद ना करें जहाँ पे खुली शराब चल रही है और सुअर रोस्ट हो रहा है, या तो उनको मनाएं अपने ससुराल वालों को, अगर वो नहीं मानते तो फिर आप अकेले जाके कर लें। फिर एक तरीक़ाकार ये है कि आप जो हैं वीज़ा डालें ही देर से वीज़ा डालें। वैसे भी जो है ना चाइना के वीज़ा मैंने सुना है 2-2.5 महीने लग ही जाते हैं, तो वो इतना देर से डालें कि वहाँ पे डेट निकल जाए, अपना वीज़ा सीधा रखें और वहाँ पे डेट निकल जाए, एंड मेक इट लुक लाइक ओ इट्स अ टेक्निकल इशू और अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, एम्बेसी ने लेट कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप अपनी चीज़ कर लें और आपके पेरेंट्स भी, उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। So save an embarrassment. That is the only way I see this happening. Otherwise, होना तो ये चाहिए कि वो अगर आपका एडहेयर करें तो आप थोड़ा उनका बर्दाश्त कर लें। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, अब इसमें कोई ये ना उठाए कि जी मैं सुअर प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो कर रहा है, अल्ली वल्ली, दैट्स देयर प्रॉब्लम टू डील विद। तो भाई यही एक तरीका है, या तो वहाँ जाएँ, कंज्यूम कुछ ना करें एंड जस्ट बी देयर एंड रंग में भंग ना डालें, उनको एंजॉय करने दें जिस तरह वो आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं बगैर अल्कोहल के, तो आप वहाँ जाके उनको बर्दाश्त कर लें। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो यही एक तरीका है। इसमें होगा ये कि ना इधर नाराज़गी ना उधर नाराज़गी, टेक्निकल इशू चाइनीज़ एम्बेसी पर डाल दो कि भाई इन्होंने देर कर दी, यही एक तरीका है और उस पर क्या कर सकते हैं। बाकी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग एंड आई विश यू अ ब्लिसफुल यूनियन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।